Okay, I have started the recording. आप लोग available हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to again we are going to study electromagnetic waves in plasma. But now today we are going to talk about low frequency electromagnetic waves. That means those electromagnetic waves in which ions will contribute. Because last time the electromagnetic waves that we have discussed are electron electromagnetic waves, because they are high frequency electromagnetic waves and only electron dynamics is important in those waves. So first of all is hydromagnetic waves. So these waves I'm considering here, these are parallel propagating electromagnetic waves. That means that K is parallel to B naught, and these are low frequency waves. And so the geometry that we are going to consider if I'm taking this, you can say this is the direction of the wave, the K vector, and it is along B naught. So these are the two vectors that are along each other. And to make sure that it is an electromagnetic wave, we are considering E1 here. And correspondingly, when we solve, we came to know that V1 and E1 will be in this direction. Here I'm going to consider E1 only in the X direction, because if you take E in X or Y, that becomes both of these will be perpendicular to the direction of K. So electromagnetic case will be satisfied. So first, I will show you that by keeping only the X term, that will simplify the calculation. And if you keep both of these terms, there will be nothing new that you can expect if you take both of X and Y. In general, we can take E1 in X and Y plane. So now we have here B along Z, B naught, and K is parallel to B naught, right? Now, in order to discuss electromagnetic waves, we need the Maxwell's equation, which are the same that that we have discussed before. So I'm going to write from the Maxwell's equation. So this is the from the Maxwell's equation. As we are considering electromagnetic, so this term will vanish, and we will get a simpler version of this term in terms of E1. So I'm going to write here, this term will vanish for the electromagnetic case, and I can write it in omega square minus C square K square E1 equals minus iota omega n naught E Vi1 minus Vi1. This Vi1 minus Vi1 is because of this current density J. Okay, so this is my equation. Now I'm going to write the component of this equation. As I'm considering E1 only in the X direction, so I'm going to write the X component of this equation.
Ex, and you can see here Vix minus, I have to write it here, Vix minus Vex. As I have already told you that we are considering low frequency electromagnetic waves, so we are not going to neglect the ion contribution in this case. As you remember from the last electromagnetic waves, that we have neglected this ion part and we have taken only the electron part. But here we are going to take both the ion part and the electron part. So this is you have to keep in mind by when you take electromagnetic waves, low frequency electromagnetic waves. Okay, now in this particular case, thermal motions are not important because we are not going to have any longitudinal oscillation or compressions or rarefactions. That we will see in the next electromagnetic wave that we will discuss, that will be perpendicular to V naught. That we have a situation in which the fluid will oscillate in a compression and rarefaction kind of situation. So there we will take the thermal part. But here, when we discuss the ion equation of motion, I'm not going to take the thermal motion, that Ti equals 0. So without Ti, I'm going to write the final version of the equation because we have derived it many times, and I'm going to write it in its components now. We have Vix equals iota E. Okay, I will write it. So we have Vix equals iota E over m omega 1 minus C square omega square minus 1 E1. So this is the x component of my ion equation of motion. And similarly, I can write the y component. This we have already done previously in the case of electron equation of motion. So these are the two equations that we'll get from the ion equation of motion. There is no z component because we have taken already v naught in the z, so the cross component will cancel out, and we will get only these two terms. Now these are for the electrons. I can easily write these equations for electron by just making the appropriate changes. Means nothing has changed for electrons. Just E will be minus E, capital M will be small m. This capital omega c square will be small omega c square, and nothing else. So you can easily write from these equations from this ion equation of motion. You can easily write the electron equation of motion. So for electrons, we will have Vex will be minus iota E over small m omega 1 minus omega c square by omega square E1. So it's simple. You just have to replace E with minus E and capital omega C with small omega c. Because it is a square, so you don't need to worry about the sign. I'm not going to write the other term because okay, let me yes. You can also write the VEY term. Now here it is omega c, which has the structure of omega c is EB by capital M. So we have E also here. So there is a minus here, there is a minus here, and it will give you a plus. So E over small m omega and small omega c by omega, and then 1 minus omega c squared by
So this is the usual transformation that you can do. And that from ion equation motion we can also write the electron equations. So these are the two terms that we are going to use: Vix and Vex. So because in our equation of motion, I have already considered only the x component of E1. So I'm going to write only these two equations in my final expression. Okay. So I need only this Vix and Vex. Okay. Vex. Okay, as we are considering low frequency electromagnetic waves, so we are considering here that omega square is very less than omega c square. So these are low frequency waves. We are not considering the cyclotron motion of electrons. So electron cyclotron motion is a high frequency oscillation. So our wave that we are going to consider is less than this frequency. So if we use this term here, so you can see that omega c square by omega square is going to be very greater than 1. So if this term is going to be very greater than 1, then I'm going to drop this term and then write it again. Vex will be minus iota e over m omega minus omega c square by omega square minus 1. So this is an inverse sign. So I can revert it back and I can write it omega square by omega c square, and minus this will be cancelled. So we will have this arrangement, or we can write it if I iota e over m omega, and from omega square, and from omega c square I'm going to write e square b square by m square, right? So there is okay. What else I have missed? What else? Okay. No. So I have this term, and this term goes to 0, as I have already taken that omega c square by omega c square is very small term. So we are going to neglect this contribution, as this contribution is going to be very small. So this term will is not contributing in my final equation. Exactly. So I'm going to write again my Maxwell's equation. So this is what we have. I have just introduced this Vix in the equation of motion of from the Maxwell's equation that we have. So because Vx is 0, so I'm not going to contribute that. So from here you can see this is going to be the equation of electromagnetic waves, low frequency electromagnetic waves in plasma. Now I'm going to solve it a bit. This will be cancelled out. So we have
n naught E squared by epsilon naught m. So iota square minus and minus plus. So we have omega square minus c square k square n naught E squared by epsilon naught capital M. And we have 1 minus omega c square by omega square inverse. Now this is the ion plasma frequency, because here now in the denominator we have the mass of ions. So we will call it ion plasma frequency. And I'm going to write it capital omega p square. Okay, and 1 minus omega c square by omega square. So this is our relation for the ion electromagnetic waves that are propagating parallel to the magnetic field. So this is the final expression that we are going to find out. But now here we can apply some other approximation in order to get a more special kind of result. As we have considered that the frequency is smaller than the cyclotron's frequency of electrons. But here we can also consider that even further lower frequencies, that even if we are talking about the electromagnetic waves that are propagating at a frequency which is much lesser than the cyclotron frequency of ions. As you know, this omega c square is so you can see that here is the mass of the ion. So as the mass of the ion is much higher than the mass of the electron, so this omega c is going to be much smaller than the cyclotron frequency of electrons, right? But now I am considering that this is still a higher frequency, and then the frequency of our electromagnetic wave is even less than this one. Then what will happen? So if we are considering that omega square is much less than omega c square, capital omega c square, then I can neglect this now. And let's see what will happen with this percentage. So if we take omega square is much less than omega c square, then we can say that omega c square by omega square is much greater than 1. So I can neglect this one part from this equation, and I can write omega square minus c square k square equals omega p square. It will be minus omega c square by omega square with an inverse, and it will be minus omega square by omega c square. And after rearranging, now omega p square is n naught e squared by epsilon naught m, and omega c square is e square v naught square by m square. So from here you can see that we are going to cancel out this one with this. Okay. Okay. So we have n naught times m, and so this will cancel out, n naught m by epsilon naught g naught square minus minus. So what is this quantity? This is number density times the mass. That will give you the mass density of your plasma. So I'm going to write it in the mass density. By rearranging omega square, this will come up here.
equals c square k square. Okay, now I can write it omega square by k square equals c square divided by 1 plus rho by epsilon naught v naught square. So as you can see on the left hand side, we have v omega by k, which is the phase velocity. So if I have a velocity here and a velocity here, then this should be a dimensionless quantity. If you remember, you can see, you can check that. Okay, I'm going to take make a bit of adjustment here. That I'm going to write instead of epsilon naught, I'm going to use this one over mu naught epsilon naught. So 1 over epsilon naught will be mu naught c square. So I'm going to introduce it here. So just to make it a bit more familiar. Familiar in what sense? I'm going to tell you in a moment. If you remember, we have derived this expression for the dielectric permittivity of plasma. If you check, we have derived it in equation. सर आप म्यूट हो गए हैं. किसने म्यूट कर दिया भाई मुझे? ओके, कितनी देर के लिए म्यूट रहा है? सर ये डाइलेक्ट्रिक का आप बता रहे थे 1 over epsilon naught कैसे लिखना है उसके बाद. ओके, ठीक है. ये equation 3.28 में that we have already done, we have calculated, if you remember, that we started the discussion in chapter 3 with this, that plasma is does not behave like an ordinary conductor or ordinary insulator or any other material. It has its own properties. So its dielectric properties and its magnetic properties are altogether different. That plasma is a diamagnetic, so we have derived a certain diamagnetic nature of plasma. Just to give you a hint of that, we have derived a slight equation of the magnetic dependence of the plasma, and also we have derived this kind of relation for the permittivity of the plasma or the relative permittivity of the plasma. So this was the expression that we have already derived in equation 3.28. You can check that in chapter 2. So I'm just substituting this value from that here. So this is going to be C by epsilon r 2, or you can say on a this it will be something like that. But here the relative magnetic permittivity is 1, so we have 1 by 2, where epsilon r is 1 plus rho mu naught c square by v naught square. Okay, now this is the velocity with which the electromagnetic wave travel along v naught, and okay, let me give you another thing. Okay, if we are considering this case that mu naught rho mu naught c square by v naught square is much greater than 1. This can be considered as a scenario where the magnetic field is let's say
To keep that term much greater than 1, we need a smaller magnetic field. So if you have a weak magnetic field, or you can say you have a highly dense plasma, in comparison, this is called the particle pressure to magnetic field pressure. This is the ratio of that. So you can say that the density of the plasma is high, or you can say the magnetic field is weak. So we can take this consideration. So if we have this kind of situation, actually C square is not. I think probably you might be thinking about that C square is there, so this term is going to be always greater than 1. But it's not the case, because the density can be 10 raised to power 21, 22, and more, even more than that. So and B naught square, this term can be large. So we can take certain scenarios where this term is overall going to be less than 1. Okay, so we have taken into consideration that we are considering highly dense plasma or weak magnetic field, so we can use this approximation. If we can use this approximation, I can drop this term, and I'm left with the omega by k equals C by rho mu naught C square by B naught square 2. Or I can cancel out these terms, and we have B naught by rho mu naught under root. Okay, so this will be my phase velocity of the wave when the low frequency waves are traveling along B naught, and this velocity is called L1 velocity. So these waves are also called L1 waves, which are fine electromagnetic waves parallel to B naught. So this is the expression for the L1 velocity. Okay, now I'm going to discuss why these waves are very important. Because when you discussed or if you start doing research in plasma, you are going to encounter this L1 waves most commonly in each and every research paper, or in each and every article that we are going to discuss these below. Because these are special kind of waves. How these waves are special, I'm going to tell you in a moment. That we have these velocities that have a fluctuating magnetic field, V1. Okay, so I hope I can draw it in a better way. This is Y and Z is to X. Okay, now we have let's see, we have a B naught in this direction. Now the wave developed a B1 component perpendicular. You all can see that what I have written here. Yes, sir. Okay, so we have a B naught in the Z direction, and we have the electromagnetic wave has developed a B1 a perpendicular direction. Final electromagnetic wave will be like that. So we have a wave like in this way. We have waves in this way. So you have electromagnetic oscillation this way, and as I have considered E1 in this direction.
right? So you can see that we have an E1 cross B naught. If we take E1 cross B naught, then you will get a V1 in the downward direction. That will be the drift of the particles, which we studied in the second chapter. This is the drift of the particles perpendicular to this. Now you can see that the particles are drifting downward. And also, this is an oscillating quantity V1, and we also have B1 as the oscillating quantity. So B1 is also oscillating like that, and V1 is also oscillating like that. So when these two terms, when we consider both of this V1 and V1, it came to our notice that the particles are behaving like that they are stuck to the magnetic field. Wherever these magnetic field lines are going, these particles are following them. So we call it that these are kind of loaded springs. Or you can say the plasma frozen to magnetic lines of force. So we can, so both of these terms have been used. Loaded springs, that is the magnetic field where you can think of simple wires on which you have beads. You have beads on the wire. It's kind of like that. That you have beads on this wire, and wherever this wire is going, these beads are moving along with that. So this is the situation that occurs in when we are considering electromagnetic waves, low frequency electromagnetic waves parallel to B naught. Why I'm talking about low frequency electromagnetic wave? Because if you consider high frequency, then ions will not contribute to this dynamics, and they will they will not move. They will not contribute to the dynamics of the equation. So I'm talking about low frequency because we want ions to take part in this motion. So when ions take part in this motion, we will have a situation like that the particles are get stuck to the magnetic field lines, and this is called loaded strings or plasma frozen to the lines of force. So so Bill, you can say that these are the disturbances, like that this is the string with the beads, and you have plugged it to this string, and now this string is oscillating like that, and the beads are also oscillating with the string. So here I'm going to end this hydromagnetic waves. So if you have any question, you can ask. I'm also canceling the recording, and I'm going to listen to the now questions. सर ये लोडेड स्ट्रिंग से जो पहले एक्सप्रेशन आपने लिखा है ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त। चले इसकी रिकॉर्डिंग चले जारी रखते हैं जी। लोडेड स्ट्रिंग से आपने क्या कहा सर? ये लोडेड स्ट्रिंग से पहले एक्सप्रेशन लिखा ना V1 इक्वल टू E1 क्रॉस B नॉट बाई B नॉट स्क्वायर। जी, मैंने आपको इस तरह बताया कि जैसे आप राइट हैंड रूल से आप देखें कि E1 इस तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ, और क्रॉस B नॉट, ठीक है, आप इस तरीके से B नॉट की तरफ जा रहे हैं जो कि इस डायरेक्शन में। सो E1 क्रॉस B नॉट विल गिव यू अ ड्रिफ्ट ऑफ द पार्टिकल्स डाउनवर्ड। E1 क्रॉस B नॉट जो आप पहले E क्रॉस B ड्रिफ्ट के तौर पर पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, ठीक है जी सर। जी सर, और इसे ही लोडेड स्ट्रिंग प्लाज्मा फ्रोजन टू लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये देखिए V1 जो है ये भी एक ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है। B1 जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने डेवलप की है वो भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। B1 y डायरेक्शन में है और E1 भी इसी डायरेक्शन में है।
तो जैसे V1 ऑसिलेट करेगा इसी तरह B1 ऑसिलेट करेगा. So it will appear to us कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लोडेड स्ट्रिंग्स हो जाएंगी कि जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वहां वहां पर वो पार्टिकल्स आएंगे. ठीक है, तो इसको हम एक सिचुएशन ये कहते हैं कि जैसे प्लाज्मा जो है वो फ्रीज हो गया है या प्लाज्मा जो है वो स्टक हो गया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. यस सर. ठीक है जी सर. ये बड़ी इंपॉर्टेंट वेव्स हैं. यूजुअली हम जो सोलर प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं वहां पर हमारे पास यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. वहां पर हम अक्सर जो है ये L1 वेलोसिटीज L1 वेव्स की बात करते हैं. और यहाँ पर आपने थोड़ा सा ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने पहले पैरेलल प्रोपगेटिंग वेव्स को डिस्कस किया है और इसके बाद मैं जो हूँ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया. उसकी वजह ये कि यहाँ पर ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है L1 वेलोसिटी का, ओके आई हैव नॉट रिटन इट, ये बेसिकली आपके पास L1 वेलोसिटी कहलाती है, v नॉट बाय म्यू नॉट रो. ठीक है, तो ये L1 वेलोसिटी जो है ये नेक्स्ट जो हम परपेंडिकुलर प्रोपगेटिंग करेंगे उसमें जो है ये यूज होगी. तो पहले इसको डिस्कस किया, बाद में वो परपेंडिकुलर प्रोपगेटिंग जो है वो आएगा. जी, एनीथिंग एल्स? इफ नॉट तो मैं दूसरी वेव जो है वो मैग्नेटोसोनिक वेव जो है उसको स्टार्ट करने लगा. मेरे ख्याल में सारे ऑनलाइन होके घरों के कामों में मसरूफ हो गए हैं, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, चाय शाय पी रहे हैं. नहीं सर, वो लेक्चर के साथ कर लेते हैं. मैंने कहा शायद एक साइड पे कोई मूवी लगाई हुई है और दूसरी साइड पे जो है वो अपने आप को ऑनलाइन शो किए हुए, क्योंकि बोल तो कोई भी नहीं रहा. सर अटेंडेंस ले लें. मुझे लग रहा है ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा. तो क्योंकि अच्छा एक चीज और आप लोगों को बताने की जरूरत है कि जो अटेंडेंस है वो उसी तरीके से चलेगी 75% वाली. ठीक है, तो मैं अभी तो नहीं हूँ मैं लगा रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लोग मतलब यहाँ पे मुझे नजर ये आता है कि सारे लोग जो है वो अवेलेबल है. सो इस वजह से मैं अलबत्ता CMS पे आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो अपलोड करूँगा. ठीक है, उसके अलावा एक और चीज ये थी कि मैंने जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्स मोड और RL वेव्स. ठीक है, उन दोनों के जो आपके प्लॉट्स है जो कि चैन की बुक में अवेलेबल है वो आपने मुझे नेक्स्ट वीक प्लॉट करके देने हैं मैथमेटिका पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे कि आप इनको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा P और ओमेगा C ले लें और कोई रैंडमली चूज कर सकते हैं 1 2 3, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू कोई डेंसिटी की या मैग्नेटिक फील्ड की लेने की जरूरत नहीं है. ओमेगा P और ओमेगा C को आप लाजमत चेंज करेंगे तो वो आपका ग्राफ जो है वो चेंज हो सकता है. ठीक है, तो आप लोगों की नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट ये है कि आपने ये दोनों वेव्स जो हैं एक्स मोड और R एंड L वेव्स, उनके जो ग्राफ्स गिवन हैं चैन की बुक में वो आपने मुझे प्लॉट करके देने हैं. ठीक है, ये मैं ईमेल भी कर दूंगा अगर किसी को समझ नहीं आए तो. और अगर आपको प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यूजुअली जो हम प्लॉटिंग में जो चीज देखते हैं वो ये है कि हम या तो करते हैं कि हर चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं विद ओमेगा P. जहां जहां पे ओमेगा है उसको आप ओमेगा P से नॉर्मलाइज कर दें. इसी तरीके से जहां जहां ओमेगा C है उसको भी आप ओमेगा P से नॉर्मलाइज कर दें. ठीक है, इस तरह की टर्म्स आपके पास मौजूद होंगी उसमें एक्सप्रेशंस में, और उन सब को आप ओमेगा P से नॉर्मलाइज कर दें. और ये जो आपके पास जो फैक्टर बनता है लेट्स कॉल इट अल्फा, इसकी कोई भी वैल्यू ले लें 1 2 3 4 व्हाटएवर. ठीक है, तो दैट विल गिव यू इंडिकेशन और आपकी वेव की जो है वो वैल्यूज, क्योंकि आपके पास यही दो कंट्रोलिंग पैरामीटर हैं ओमेगा C और ओमेगा P. तो बेसिकली आपका प्लॉट है V phi square और C square वर्सेस ओमेगा. तो बेसिकली ये ओमेगा बाय ओमेगा P हो जाएगा. ठीक है, जब आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये दैट विल टर्न्स आउट टू बी ओमेगा बाय ओमेगा P.
सो आपको पहले तो ऐसा एक जो मैंने v² ओवर c² का जो एक्सप्रेशन बनाया था उसको आपने बनाना है, और उसमें जो राइट साइड पे टर्म्स हैं उन सबको कोई नॉर्मलाइज करके इस तरीके का स्ट्रक्चर देना है, ठीक है। और फिर अल्फा की वैल्यू को चेंज करके देखना है कि आपकी कर्व जो है वो कैसे चेंज होगी, ठीक है। Okay, second wave is magnetosonic waves. Now these are the why we are talking about sonic. तो आप लोगों ने नई मूवी देखी है सोनिक? किसी ने? नहीं सर। अरे तो क्या बैठ के कर रहे हैं घर में? यस सर, मैंने देखी है। अच्छा प्रिंट नहीं आया। अच्छा प्रिंट नहीं आया? नहीं, मैंने तो डाउनलोड कर लिया टॉरेंट से, अच्छा प्रिंट आ गया। मैं भी देख चुका हूँ, 720 में देखी है मैंने। अच्छा, चलिए, तो वो लिंक भेज दिएगा ना जिसको नहीं मिल रही सोनिक, ठीक है। ओके, सो ये सोनिक मींस दैट इट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ पर आपके पास कुछ साउंड वेव्स टाइप स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। अब आपको याद होगा कि साउंड वेव्स को जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पर हमने ये चीज बताई थी कि साउंड वेव्स को प्लाज्मा में डिस्कस करने के लिए जरूरी है कि आप टेम्परेचर को इंक्लूड करें, ठीक है। तो अब ये वो वाली इक्वेशन है जहां पर हम टेम्परेचर को इंक्लूड करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे हम इन वेव्स में ही, क्यों मतलब टेम्परेचर को लेके आ रहे हैं, पिछली वेव्स में टेम्परेचर को क्यों नहीं लेके आए थे, उसकी मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री बनाता हूँ तो फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर की जरूरत क्यों है, या यहाँ पर हम सोनिक की वेव्स के बारे में क्यों बात करें। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो ये है। So I have our B naught is along z-axis, and again I am taking E1 only in this x direction, and my wave is propagating in y. This is my k. Now you can see कि अगर आपकी वेव इस तरह प्रोपगेट कर रही हो, ठीक है, तो आपके पास जो E क्रॉस B जो ड्रिफ्ट आती है, ठीक है, अगर आप इस चीज को देखें, I have to write it. So I have E and B is in the upward direction. Okay, so I have to place my. हेलो जी सर, ये एक दफा रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट गई है। अच्छा, अब आ रही है आवाज मेरी? यस सर। ओके, अब आप ये देखें कि ये E1 जो है ये आउट ऑफ द पेज है, E1 ऊपर की तरफ है, तो E क्रॉस B नॉट विल गिव यू अ ड्रिफ्ट ऑफ द पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इन द y डायरेक्शन। यस सर। E1 क्रॉस B नॉट विल गिव यू अ ड्रिफ्ट ऑफ द पार्टिकल इन y डायरेक्शन। अब जो आपके पास वेव है वो भी y डायरेक्शन में है, और जो आपके पास ड्रिफ्ट है वो भी y डायरेक्शन में। तो ये आपके पास जो ड्रिफ्ट होगी दैट विल क्रिएट अ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल। इस वजह से ये y डायरेक्शन में इस तरीके से जो प्लाज्मा है वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस E1 क्रॉस B नॉट, ठीक है, सही है? यस सर, ये क्लियर हो गया। ठीक, तो हम जो अब डिस्कस करेंगे वहां पे हमें जरूरी है कि क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि कंप्रेशन रिफ्लेक्शन बनेंगे, इस वजह से हम यहाँ पर इन वेव्स में टेम्परेचर है उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सर आप तो थोड़ा सा पीछे खड़े होते हैं तो आवाज कम हो जाती है, आप थोड़ा सा आगे ही खड़े होकर बोलें। मैंने इस वजह से ये तो माइक लगाया था कि शायद इससे कोई साउंड पे फर्क पड़ेगा। ये सर अब आपने माइक पकड़ा है शायद, तो आवाज ठीक हो गई है, वो आप थोड़ा सा पीछे होते हैं तो फिर कम हो जाती है। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ उसको। ओके, अब यहाँ पर हम जो इससे पहले हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी उसमें हमने टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में, चाहे आप O मोड को देख लें, X मोड को देख लें, RNL वेव्स को देख लें, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख लें, उनमें हमने कहीं पर भी टेम्परेचर को हमने कंसिडर नहीं किया। आप ले सकते हैं लेकिन वो कोई नई डायनामिक्स नहीं देगा आपको, लेकिन इस वेव में स्पेशलिटी ये है कि हम यहाँ पर टेम्परेचर को कंसिडर करेंगे।
तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो ये है। और k जो है इन द y डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हमारे पास b इज z, e1 इज along x and k is y। तो ये आपकी कंडीशन पूरी होती है कि आपके पास वेव जो है पूरा प्रोपगेट कर रही है परपेंडिकुलर टू b नॉट, और आपके पास k और e भी परपेंडिकुलर है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंडीशन है। तो कंडीशंस पूरी हो जाती है। तो मैं आइंस के लिए जब लिखूंगा m and नॉट, ये मैं इसका लीनियराइज्ड पार्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आयंस का। So this is the ion equation of motion, and I have introduced this temperature here. Okay. अब as I have told you कि आपके पास oscillations जो है वो along y direction है because of E1 cross B naught, ठीक है। तो जब हम density gradient की बात करेंगे तो वो भी along y direction होगा, किसी और direction में आपके पास जो density है वो is not going to fluctuate, ठीक है, because जो oscillations हैं that are along y direction, ठीक है। तो जब मैं इस इक्वेशन का x कंपोनेंट लिखता हूँ तो मैं इसको अगेन जो इसको लीनियराइज करके यहाँ पर आयोटा ओमेगा करके ये इसके कंपोनेंट vix क्रॉस b नॉट ये कंपोनेंट बना के, सो आई एम गोइंग टू राइट इट vix। सर जी हेलो जी सर, डेंसिटी फ्लक्चुएशन डायरेक्शन पे डिपेंड कैसे कर रही है? मतलब डेंसिटी है वो तो उसको तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। देखिए, वो तो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो इक्विलिब्रियम पे मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो E1 क्रॉस B नॉट ड्रिफ्ट आती है वो पार्टिकल्स को y डायरेक्शन में आगे और पीछे लेके जा रही है, इसका मतलब है वो कंप्रेस कर रही है इस तरफ पार्टिकल। तो डेंसिटी से इस तरफ जो है इस डायरेक्शन में चेंज होगी, इस डायरेक्शन में चेंज होगी बिकॉज यहाँ पे कोई पार्टिकल्स की ड्रिफ्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ y डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो है वो कंप्रेस होंगे और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इस वजह से सिर्फ ग्रेडियंट जो डेंसिटी का ये आपके पास n1 है, ठीक है, ये n0 नहीं है। ओके सर, ठीक है, ये है बिकॉज ऑफ पर्टर्बेशंस। अगर आपके पास ग्रेड n0 होता वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब इनिशियली आपकी डेंसिटी जो है वो किसी भी डायरेक्शन में पर्टर्ब्ड हो सकती है। सॉरी, पर्टर्ब से नहीं मतलब यानी कि आपके पास के अंदर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है किसी भी डायरेक्शन में, वो हो सकता है, लेकिन हम ग्रेड n0 नहीं ले रहे, ग्रेड n0 0 है, ठीक है। इनिशियली कोई डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं है, ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट आ रहा है ये बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन है, ठीक है। फ्लक्चुएशन होंगी तो ये एग्जिस्ट करेगा, फ्लक्चुएशन नहीं होंगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो इसको आपने इसके साथ ग्रेड n0 के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। लेकिन सर ठीक है, वो ग्रेड n0 वाला क्लियर हो गया है, लेकिन अगर हम डेंसिटी की ऐसा बात करते हैं तो बेशक हम पार्टिकल को फ्लक्चुएट करा रहे हैं इन द वाई डायरेक्शन, तो पार्टिकल तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी मर्जी को फॉलो करे। हमने उसको बेशक धकेला तो वो ऊपर नहीं, हमने नहीं धकेला, जो कंडीशंस उसको दी गई हैं, ठीक है, उसमें E1 x डायरेक्शन में दिया गया है, B0 z डायरेक्शन में दिया गया है, उन कंडीशन को फॉलो करते हुए वो मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब जो आपके पास प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं दे आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहे, ठीक है, या बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं कर रहे। जब तक कोई ना कोई पर्टर्बेशन ना आए दे आर नॉट गोइंग टू लीव देयर एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन जब आएगी तो E1 क्रॉस B0 टर्म की वजह से वो एक बल्क में जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे इन द वाई डायरेक्शन, दैट विल क्रिएट अ कंप्रेशन, और पीछे जो रह जाएंगे दैट विल पुल देम बैक, ठीक है। तो यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगी इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ
कि ये जो ग्रेड n1 है ये सिर्फ y डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में नहीं होगा। ओके सर। तो Vix वही है जैसे आपने पहले उसको आपको याद होगा आपने जब आयन की वेव्स कंसीडर की थी और आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आयन लिखी थी, तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कंपोनेंट्स बनेंगे Ex plus Vi naught, और you can easily see it from here कि यहाँ पर सिंपल ये हो रहा है कि ये जो आपके पास ऑसिलेटिंग टर्म है इसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो आपको आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा देगा, बाकी ये टर्म ऐसे ही है, ये इसका x कंपोनेंट और यहाँ से क्रॉस से Vi by V naught, और आप x डायरेक्शन में कोई डेंसिटी पर डेरिवेशन नहीं ले रहे तो ये टर्म आपकी ओमिट रहेगी x डायरेक्शन में। जब मैं Vi y कंपोनेंट लिखूंगा इसी इक्वेशन का, तो यहाँ पर ओमेगा, अब यहाँ पर आ गया Ey, ठीक है, और माइनस Vix V naught, ठीक है, और फिर आपके पास K बाय ओमेगा, ये ग्रेड इधर से ग्रेड की वजह से अयोटा K आएगा और यहाँ से अयोटा ओमेगा आएगा, अयोटा और अयोटा कैंसिल तो K बाय ओमेगा बचेगा, और गैमा I KBTI डिवाइडेड बाय कैपिटल M N1 by N naught। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर मैंने E को सिर्फ लिया है x डायरेक्शन में, so there will be no Ey, तो ये टर्म आपकी, तो now we have Vix and we have Viy, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मजीद आगे चलाने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिखूंगा, ठीक है, और उधर से जो है वो जी सर इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट के जो n नॉट है वो खत्म नहीं हो जाना चाहिए Viy में अब, क्योंकि हम अब तो उसकी बात कर रहे हैं ना। n देखें n नॉट खत्म करेंगे तो प्लाज्मा खत्म हो जाएगा ना, n नॉट तो प्लाज्मा है ना। ठीक है सर, सही है। Now from the equation of continuity, I have n1 over n naught I have this Viy। अब Viy को अगर आप यहाँ पर यूज करें, ठीक है, यूज ये n1 over n naught जो यहाँ पर मौजूद था, ये फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आप n1 by n naught निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास Viy की टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर K by omega Viy। So we have a K over omega, it will be K square over omega square and Viy. Now you can see this term. So this will be the thermal velocity of ions, gamma KBTI by capital M। आप इसको as it is भी रख सकते हैं या इसको आप आयन थर्मल वेलोसिटी जो है उसके तौर पर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Okay, so I'm going to take this और यहाँ पर Viy 1 minus K square by omega square V thermal I square equals minus iota E over capital M omega Vix V naught। I think ये ठीक रहेगा। ओके, और एक और थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ई बी नॉट बाय कैपिटल एम, ये आपके पास कैपिटल ओमेगा सी बाय ओमेगा हो सकता है, ठीक है जी। ओके, अब Vix जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था इसको मैंने इरेज किया, उसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, Vix की वैल्यू है, so it turns out to be Vix था हमारे पास
मैं दोबारा लिख देता हूँ, आयोटा ई ओवर कैपिटल एम ओमेगा ई एक्स प्लस बी आई वाई बी नॉट। सो ये वी आई वाई और वी एक्स की एक इक्वेशन है, इसी तरीके से इक्वेशन है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके हम वी आई एक्स के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमें ये वैल्यू जो है वी आई एक्स की, वी आई वाई की सॉरी, इसको मैं ए कह देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये ताकि इसको मुझे बार बार ना लिखना पड़े, 1 माइनस। सो वी आई वाई की ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी एक्स में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। वी एक्स और ये हो जाएगा माइनस एटा ओमेगा सी बाय ओमेगा बी नॉट 1 माइनस ए बी आई एक्स। ठीक है जी, ओके। सो जी आपको आवाज तो आ रही है मेरी, चाहे मैं थोड़ा सा दूर हूँ उससे? ये सर आ रही है। ठीक, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सर आपकी आवाज सही आ रही है, बहरहाल ये कि वो बिलर जो है ना, वीडियो शुरू से ही हो रही है बिलर, मतलब ये कि वो सही मतलब क्लियर वीडियो नहीं आ रही है। यार वीडियो को तो मैंने 1-2 दफा पहले भी चेक किया है, आई डोंट नो कि किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है या ये कनेक्टिविटी का इशू है। सर वो कनेक्टिविटी का इशू है, बीच में हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता है। अच्छा चले, इसको, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो डेफिनेटली जब आप उसको चेक करेंगे तो शायद बाद में ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ठीक है हमें बाद में जब आप इसको स्ट्रीम करके देखें तो शायद ये प्रॉब्लम ना एग्जिस्ट करे, होपफुली। ये सर बस मैं आपको बता रहा था ऐसे, वैसे ये कि मैं बाद में देख लूंगा सर। ठीक, कोई issue नहीं लास्ट टाइम जो हमने वीडियो की थी उसमें मुझे लग रहा है कि जो मैंने वीडियो जो देखी उसमें थोड़ा सा ब्लर रहता है शुरू में, जी सर। तो आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा है। हालांकि मैं अगर इसी वेबकैम से मैं वीडियो सेपरेट बनाता हूं तो वहां पर ये ब्लर का इशू नहीं आता। आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, पर्टिकुलरली इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में क्यों ऐसा हो आपका सर कैमरा मैन कौन है ऑफिशियल, उससे शायद वो आपको बता दे कोई इशू वगैरह। रहा है। मेरा ऑफिशियल कोई कैमरामैन नहीं है, मैं अपने लैपटॉप के वेबकैम को यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही है हाँ सर, कोई इशू नहीं है, सुनिए चल, कर लेंगे, गुजार कर लेंगे सर। ठीक ठीक, चलो थैंक ठीक यू। है अच्छा अब ये इसको वेलकम। थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर आप देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ ओवर एम ओमेगा। अगर मैं बी नॉट यहाँ पर भी कर दूं और यहाँ पर भी कर दूं तो इसकी कोई जरूरत है या नहीं, इसको ऐसे रहने दें, इसको छोड़ आयोटा ई ओवर कैपिटल ओमेगा एक्स। ये टर्म जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है तो ये ई बी नॉट बाय एम, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस ई बी नॉट बाय कैपिटल एम ओमेगा और ओमेगा सी बाय ओमेगा और 1 माइनस ए को इनवर्स और ठीक है। अब ये ई बी नॉट बाय एम जो है ये अगेन ओमेगा सी है, तो ये एक ओमेगा सी और एक ये ओमेगा सी, दैट विल गिव यू एन ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बजाय मैं ओमेगा सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके। अच्छा अब ये टर्म मैं उठा के इधर ले आता हूँ, 1 माइनस आयोटा ई ठीक है जी। अच्छा अब जो आपके पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं वहां से आपके पास
हमारे पास ये रिलेशन आता है, ठीक है। ये हम बार बार कर चुके हैं। यहाँ पर आपके पास आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। इसका एक्स कंपोनेंट मैं लिख रहा हूँ बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली द एक्स कंपोनेंट ऑफ द परटर्म एक्टिविटी, तो बाकी कंपोनेंट्स को मैं नहीं ले रहा हूँ। अब आप ये देखें कि जैसे मैंने VIX निकाला है, तो आई कैन इजीली राइट VEX फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगेन वही सब्स्टिट्यूशन होगी कि जहां पर कैपिटल ओमेगा सी है वहां स्मॉल ओमेगा सी आ जाएगा, जहां पे कैपिटल M है वहां स्मॉल m आ जाएगा, जहां E है वहां माइनस E आ जाएगा। तो इस तरह की अगर मैं सब्स्टिट्यूशंस करूं तो मेरे पास जो VEX है उसका रिलेशन जो है उसको अगर मैं लिखूं, चले मैं यहीं से सब्स्टिट्यूट करता हूं इसको, 1 माइनस स्मॉल ओमेगा सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, और ये अगर मैं इसको AI कर लूं, ठीक है, बिकॉज वहां पर आपके पास ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर V थर्मल I स्क्वायर था, तो यहाँ पर AI कर दूं तो ये 1 माइनस E हो जाएगा, और E की जगह मैं माइनस E कर दूं, कैपिटल M की जगह स्मॉल m कर दूं, और सो दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है ये फॉर इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर हम क्योंकि हम ले रहे थे लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हम ये जो आपके पास टर्म है इसको हम कह सकते हैं, हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है इज वेरी लेस देन ओमेगा सी स्क्वायर। ये हमने लास्ट टाइम भी यूज की थी, जो लास्ट टाइम एल्बम यूज की थी उन्हें भी ये एक्सप्रेशन यूज किया था। यहाँ पर भी हम यही कंडीशन लगाएंगे, तो इसका मतलब है ओमेगा सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज अ बिगर क्वांटिटी देन 1। सो हम इस टर्म को रिटेन करेंगे, इस टर्म को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, सो ये मैं इस टर्म को ड्रॉप करता हूं, सो Vx विल बी माइनस ये वो ओमेगा का और minus omega c square by omega square 1 minus 3 is 1 minus eta e over small m omega x। अब ये मेरे पास Vx की कंडीशन आ गई है, इक्वेशन आ गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ और आपको एग्जैक्ट सो VEX, अब ये टर्म उठा के मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो यहाँ से चलिए माइनस और ये माइनस कैंसिल, अब ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय ये इनवर्स में टर्म लिखी थी 1 माइनस माइनस 1, तो ये इनवर्स यहाँ पे है मुझे, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई उसके साथ हो जाएगी 1 माइनस और आयोटा ई over small m omega and Ex, ठीक है। अब यहाँ पर Yes, अगेन अब मैं a की वैल्यू को जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, which was k square by omega square gamma e kb te by small m, or you can write V थर्मल E स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में, तो इसको एक चीज और हम इसमें कंसिडर ये कर सकते हैं कि आपके पास अगेन ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं स्मॉल टर्म लूं, तो आई नेग्लेक्ट दिस वन पार्ट ऑल्सो, तो अगर मैं कंसिडर करूं कि ओमेगा स्क्वायर जो है इज लेस देन विद दिस के स्क्वायर वी थर्मल ई स्क्वायर पार्ट, तो फिर आपके पास ये स्मॉल है तो दिस टर्म विल टर्न्स आउट टू बी लार्ज और ये टर्म ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। सो इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस ये टर्म ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
k square gamma e kBT e by m, और ओमेगा c स्क्वायर की जगह e स्क्वायर b स्क्वायर by m स्क्वायर है। सर जी सर ये जो हमने अभी कंडीशन लगाई है कि ये लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 वाली, ये कंडीशंस क्या शो कर रही हैं फिजिकली? फिजिकली ये है कि आपके पास ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बिहेवियर है वो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिहेवियर से ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं तो वहां पर आयंस जो हैं वो स्टेशनरी हो जाते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। जब आप लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेते हैं तो फिर वहां आयन भी आता है और इलेक्ट्रॉन भी आता है, दोनों की कंट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के। तो सर जो अभी हम लो फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो VIX है उसको किस तरह फिर लेंगे? V और क्योंकि X, इसमें सॉरी, और अब हम लो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं ना सर, तो इसलिए इसमें मैं कह रहा हूँ हमारी ना कि हम लो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तभी आयन की भी वेलोसिटी आ रही है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी आ रही है। तो आयन जब और आप इलेक्ट्रॉन, ये सर जी क्या आप क्या कह रही हैं? सर मैं ये कह रही थी कि अभी मतलब हम दोनों कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन की तो जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है, तो अब आयन की कैसे करनी है, या आयन की भी उतनी ही होती है, जस्ट उनमें साइन का चेंज आता है? फ्रीक्वेंसी मुझे समझिए कौन सी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली हमने? सर अब हमने लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम कर रहे हैं ना, हमने नहीं VEX फाइंड। आप उसको कंफ्यूज देखें, ओमेगा स्क्वायर ये है जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी, इसको मैं कह रहा हूं इट इज वेरी वेरी लेस देन k स्क्वायर v थर्मल e स्क्वायर। ठीक है, यूजुअली आपके पास जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाई होती है। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है कंपैरिजन टू दिस क्वांटिटी। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये ना आयन की है ना इलेक्ट्रॉन की है, ये वेव की फ्रीक्वेंसी है। ये सर ये मुझे क्लियर है। जो आपने नीचे वाली इक्वेशन में पॉइंट लिखा है ना VIX और VEX वाला, हाँ, उसमें अब हम VEX तो हम निकाल चुके हैं। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि अब हम ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेलोसिटीज हैं। वेलोसिटी है ये सर। ये मुझे क्लियर है, बाद में मैं ये नहीं पूछ रही। आप कह रही हैं ना कि आयन की फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, तो मैंने तो अभी कोई फ्रीक्वेंसी निकाली नहीं है सच, मैं तो इन सर मैं ये वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ। जी बताएं। सर मैं ये कह रही हूँ कि हम मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे हम एक चीज को है वो फाइंड कर रहे हैं ना, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जी की जी और आयन की। जी अभी जो इक्वेशन हमने ये लिखी हुई है जिसमें हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है VEX को, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे VIX भी। जी जी, तो तो वो मेरा क्वेश्चन, पहले मैं निकाल चुका हूँ ना, वो VIX मैंने निकाल लिया था लास्ट टाइम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब आयन और इलेक्ट्रॉन की हम इतना डिफरेंस क्यों आ रहा होता है दोनों की, मतलब इसमें वेलोसिटी में ना, अभी हम वैल्यूज अगर हम देखें, एक का मास जो है वो दूसरे से 1600 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन सर हम कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल रहे ना, मतलब हम यहाँ पे तो जस्ट सिंपल वही कह कैपिटल रहा M हूँ और ना, स्मॉल m। एक तरफ इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ आयन है। आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1600 टाइम्स मैसिव है। तो अब आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो एक साइकिल हो और एक तरफ जो है वो एक ट्रक हो, ठीक है, और दोनों के पर सेम फोर्स लग रही हो, तो आपका क्या ख्याल है किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। नहीं, मैं साइकिल और ट्रक की बात कर रहा हूँ। साइकिल की। ठीक है, तो लाजमत है फर्क पड़ेगा ना कि अब आप एक ही डायनेमिक्स में एक ही जगह पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या इफेक्ट है और उसका आयन के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो मैस बहुत बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है वहां। ठीक है, यस सर। चलो ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा VX VIX हम पहले इससे पहले निकाल चुके हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट बोथ दिस वैल्यूज हियर। तो हमारे पास ये टर्म्स पहले ओके, VIX की वैल्यू आयोटा E ओमेगा
dx। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ये 1 माइनस ए माइनस ओमेगा कैपिटल ओमेगा सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस जो यहाँ से आपके पास टर्म बनी थी जो कि बेसिकली आयोटा के स्क्वायर और m बाय ओमेगा बी नॉट स्क्वायर gamma e k b t e divided by e capital M dx। ये जो कैपिटल M यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और ये M ये हमने इंट्रोड्यूस किया है, M यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये डिवाइड भी कर दिया। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें gamma kbt by M, ये आपके पास अगर आपको याद हो ये अकोस्टिक स्पीड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास था gamma e kbte प्लस gamma I kbti डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m, ये थी अकोस्टिक स्पीड, ठीक है, kbs स्क्वायर था, ठीक। तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए m से डिवाइड भी कर दिया, m से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। बल्कि इस e को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कैपा केपीटी बाय m जो है ये वो स्ट्रक्चर है जो आपके पास अकोस्टिक वेलोसिटी में जो आयन अकोस्टिक वो वेव्स हमने की थी उसमें ये स्ट्रक्चर बनता है। तो आप देखें कि यू कैन निग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से हट जाएगा। आयन का टेम्परेचर यूजुअली इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर से कम होता है, तो यू कैन निग्लेक्ट दिस टर्म। सो वी हैव दिस gamma kbt बाय। सो ये vs स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली मैं जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा नेक्स्ट उसमें। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हम अगेन ये जो इक्वेशन है इसमें ये ओमेगा सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर की जो टर्म है इसको हम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 कंसीडर करेंगे, तो फिर हम ये सब टर्म को ड्रॉप कर देंगे, इस टर्म को ड्रॉप कर देंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस ए और यहाँ पर ये टर्म रह जाएगा, ठीक है। सो सर ये टॉपिक कितना रहता है अभी और? बस 3-4 लाइंस। अच्छा, अब यहाँ से देखिए एन नॉट ई स्क्वायर्ड बाय ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा, ये ओमेगा और ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एन नॉट ई स्क्वायर बाय कैपिटल एम ओमेगा, तो ये बेसिकली ओमेगा पी स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस टर्म को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम लेफ्ट विद ओमेगा सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, और इसको जब मैं इन्वर्ट करूंगा तो ये ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है, और ये ओमेगा और ओमेगा पहले कैंसिल हो चुका है, ओमेगा स्क्वायर पर आ जाएगा और इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस वी हैव ऑलरेडी, और क्या है एक माइनस यहाँ से आएगा, ठीक है जी। और फिर आपके पास ये टर्म बच गई, तो के स्क्वायर अब यहाँ पर ये आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस, फिर ये ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एन नॉट एम बाय ये ई और ये ई कैंसिल आउट हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद एन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एम बाय बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो वो बेसिकली चले मैं अलग लिखता हूँ, एन नॉट एम बाय बी नॉट स्क्वायर, ये यहाँ से बचेगा एन नॉट एम बाय बी नॉट स्क्वायर। ये जो एन नॉट एम है ये बेसिकली रो ओवर बी नॉट स्क्वायर है, ठीक है। और अभी हमने एक L1 वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाला था उसमें जो VA है मैं लिख देता हूँ, जो VA निकाला था हमने वो था बी नॉट बाय म्यू नॉट रो अंडर रूट, ठीक है जी। तो अगर आप इसको देखें तो और यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करूं कि अगेन जो आपके पास सी स्क्वायर होता है वो 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसको आप रूट के तौर पर लें तो
इस तरीके से आपके पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/μ0 की जगह अगर मैं c और एप्सिलॉन नॉट रूट पुट कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा c b0 रूट एप्सिलॉन नॉट बाय रो, ठीक है, अंडर रूट रो। तो बस ये सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर, ठीक है। तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूं अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज b0 स्क्वायर बाय रो, ठीक है, b0 स्क्वायर बाय रो। तो ये टर्म जो है रो बाय b0 स्क्वायर जो है, इट कैन बी रिटन एज c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय va स्क्वायर, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो Yes, नहीं sir. है? ओके, No, sir. ओके, तो मैं इस सारे को अब इरेज कर रहा हूं। तो वी हैव k स्क्वायर c स्क्वायर बाय va स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट था वो यहाँ पर इसके साथ अटैच होगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद गामा e KBTE, बल्कि इसको भी मैं गामा के इसको मैं VS स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। जो ये गामा KBTE बाय कैपिटल M है, इसको मैं VS स्क्वायर लिख रहा हूँ। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब इसको जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर भी c स्क्वायर k स्क्वायर है, यहाँ पर भी c स्क्वायर k स्क्वायर है, तो माइनस c स्क्वायर k स्क्वायर 1 माइनस vs स्क्वायर बाय va स्क्वायर और प्लस ओमेगा p स्क्वायर बाय ओमेगा c स्क्वायर 1 माइनस a ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। अब ये जो ओमेगा p स्क्वायर बाय ओमेगा c स्क्वायर है, इसकी अगर आप वैल्यूज को देखें तो ओमेगा p स्क्वायर को अगर मैं लिखूं तो ये n नॉट e स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल M, और जो ओमेगा c स्क्वायर है वो e स्क्वायर b नॉट स्क्वायर बाय m स्क्वायर। सो e कैंसिल आउट हो गया, a कैम और a कैम कैंसिल आउट। सो यू आर लेफ्ट विद n नॉट कैपिटल M बाय एप्सिलॉन नॉट b नॉट स्क्वायर। तो ये फिर वही एक्सप्रेशन बन गया जो अभी हमने va स्क्वायर का निकाला था, इसमें मास डेंसिटी डिवाइडेड बाय द b नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है c स्क्वायर बाय va स्क्वायर, ठीक है जी। तो इस ओमेगा p स्क्वायर बाय ओमेगा c स्क्वायर की जगह मैं c स्क्वायर बाय va स्क्वायर लिख सकता हूं, c स्क्वायर बाय va। और एक और जो चीज हम कर सकते हैं, और मैंने क्या किया, ओके, मीटर और मीटर, ठीक है। हमने इसको ए को जो है वो आइन जो आपके पास टेम्परेचर है उसको इग्नोर किया हुआ है, उसको भी आप कर सकते हैं। जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ आइंस है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको गामा आई ठीक है। अच्छा, अब ये सी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पर भी है, सी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो वी हैव, और एक सॉरी मैंने ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ठीक है। और इस टर्म सारी को मैं उस तरफ ले जाता हूँ,
तो सी स्क्वायर के स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय बी ए स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर है, तो ये प्लस gamma I KBTI by capital M by A square। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप ये बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और रीसब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो ये आपके पास मैं इसको थोड़ा सा बना दूं। वी एस स्क्वायर इज बेसिकली भी साथ आए। सॉरी, जो लास्ट टर्म आपने लिखी है उसमें ओमेगा स्क्वायर भी आएगा। इसमें यस सर। आई थिंक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। ओके, आप इसको जो नोट्स है उसमें देख लीजिएगा, मैंने थोड़ी सी कहीं पर जो है ना कोई साइन की मिस्टेक की है, तो फाइनली आपके पास सिचुएशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। नोट्स में मैंने ठीक किया हुआ है, उसको वहां पर चेक कर लीजिएगा। ये फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, ये ऊपर कहीं मैंने यहाँ पर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक की है, कई टर्म्स को ऊपर नीचे, क्योंकि वो एक जगह लिखा जाए तो पैटर्न वाइज पता लगता है कि कौन सी क्वेश्चन के बाद कौन सा आ रहा है। सो फाइनली दैट यू विल गेट, वो ये है ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर सी स्क्वायर वी एस स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। सो ये हमारे पास फाइनल डिस्पर्शन रिलेशन है मैग्नेटोसोनिक वेव्स का, जो जिसमें जो एक अकूस्टिक टाइप ऑफ वेव है, जिसमें आपके पास कंप्रेशंस और रेफ्रैक्शंस हैं। इंस्टेड ऑफ के आप यहाँ पर आप अलोंग ई मूव करें, जो आपके पास पहले हमने जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग ई मूव करते हैं, so that will create oscillation. Instead of E, now we have, because of E cross B, we have these acoustic type of oscillations. तो यहाँ पर देखें, अगर आपके पास अगर आप B नॉट को हटाते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो VA है वो 0 हो जाएगा। अगर आप B नॉट को हटाते हैं तो VA जो कि बेसिकली रो B नॉट के साथ है वो V 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप अकूस्टिक को इस L1 वेव को L1 वेलोसिटी को हटाते हैं तो आपके पास जो बाकी बचेगा, यहाँ पर इसको ड्रॉप करें तो आपके पास सिंपल ऑसिलेशन बच जाएंगी, क्योंकि आपके पास अकूस्टिक ऑसिलेशन है। ठीक है, जो आइन अकूस्टिक वेव का एक्सप्रेशन है वो बच जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर को 0 करें, ठीक है, तो आपके पास अकूस्टिक खत्म हो जाएगा और आपके पास मॉडिफाइड L1 वेव आ जाएगी। मॉडिफाइड किस सेंस में, आपके पास सी स्क्वायर वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। ठीक है, जो पहले आपके पास L1 वेव्स आई थी उसमें से VA आया था, नाउ इट इज अ मॉडिफाइड L1 वेव। ठीक है, कि आपके पास जब प्रोपगेशन हो जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर भी आपके पास अकूस्टिक टाइप आ सकती हैं अगर आप टेम्परेचर को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं जिसमें आपके पास जो है एक आप B नॉट 0 का केस कंसिडर कर सकते हैं, एक आप इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये दो केसेस हैं जिसमें आपके पास दो डिफरेंट रिलेशंस, ये वही वापस दोबारा अकूस्टिक आ जाएगा और ये मॉडिफाइड L1 वेव है। ठीक है, मैं क्यों इनको L1 वेव्स कह रहा हूं, बिकॉज इसमें L1 वेलोसिटी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, यस। चलिए मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही।
अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम कल इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज से एक आध प्रॉब्लम जो है, या वहां से कुछ हिंट दे के आपको कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के बारे में बता सकूं। इसके अलावा आप लोगों को मैंने असाइनमेंट का बता दिया है कि आपने आर एंड एल वेव्स और जो एक्स मोड का जो ग्राफ्स है जो बुक में गिवन है उसको आपने प्लॉट करना है मैथमेटिका पे या किसी भी सॉफ्टवेयर में। सर ये आवाज आप कर रही है, किसको प्लॉट करना है वो आप उस पे मैसेज कर सकते हैं। जी किस मैं फंक्शन मैसेज पे कर plot? मैसेज कर दूँ। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। जी एनी क्वेश्चन? नो सर, फिलहाल नहीं। ठीक है सर, समझ आ गई है। कोई और? नो सर, नो क्वेश्चन। चले ठीक है जी, थैंक यू। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम इसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन, इसको रिवाइज करूंगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। यस ओके सर। खुदा हाफिज।